اور اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی ہے۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حرف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت جس دستگاہ کا موٹو ہے، جو قریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے۔ دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچسٹر وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ یہ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسے بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع کثیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امرہ۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امرہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹ کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امرہ، تیز چلو نا۔ ڈیڈبی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس کی آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈیڈبی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرہ کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا، اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی اعضاء کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا، کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امرہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرہ، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں، پکا وعدہ، میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرہ کو اس کی بات کچھ شک سا ہے بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا، اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرہ کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ امرہ نے اس کے تاثرات جان لیے، اور او مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتی خاموش ہو گئی۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن
अच्छी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें आगे बढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर अपने आप को मनवाने का मौका मिल सके, ताकि ये सब फिर पाकिस्तान की तरक्की में अहम मुआवन साबित हो सके। सादा लफ्जों में हम बेहद ज़हीन लेकिन बेहद गरीब स्टूडेंट्स को यहाँ बुलवा रखे थे, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। हमारे 30 लोगों के ग्रुप ने मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए। हमने मुख्तलिफ इवेंट्स में स्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूजिक और थिएटर किया, कुछ हमारी अपनी सेविंग थी और कुछ हमें हमारे वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ अफराद ने फंड्स दिए और हमने मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस सूरत में अगर वो यहाँ आते ही जल्द से जल्द अपनी खुराक और रिहाइश की जिम्मेदारी उठा लेते। अगर हम उन्हें खुराक और रिहाइश भी देते तो सिर्फ 3 ही को यहाँ बुलवा सकते थे। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से हमने 5 का इंतखाब किया। बाकी के जो 1000 स्टूडेंट्स थे वो भी किसी से कम नहीं थे, लेकिन जिन 5 का हमने इंतखाब किया था वो गांव और बहुत छोटे कस्बों के रहने वाले थे और उनके लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आकर पढ़ने के इम्कानात सिफर थे। वो सब यहाँ 1 हफ्ता पहले ही आ चुके हैं और खुशी की बात यह है कि आते ही उन्होंने अपनी रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ हुनरमंद भी हैं, इसलिए उन्हें फ़ौरन यहाँ जॉब मिल गई। उनमें से एक गाड़ियों के लॉक ठीक करता है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसे तालिब इल्म को यहाँ लाने में कामयाब हो चुकी हैं जिसने अपनी प्राइवेट तालीम में पंजाब बोर्ड में टॉप किया, और ये काम उसने गाड़ियों के लॉक ठीक करते और एक भी दिन अपनी जॉब से छुट्टी न करके किया। हमें जितनी दरख्वास्तें वसूल हुई वो कमो बेश सभी ऐसी थी, लेकिन एक आपकी दरख्वास्त सबसे मुख्तलिफ थी। आपकी तालीमी इस्नाद में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं था। आप उन 1000 में से सिफर थी। आप लाहौर जैसे बड़े तालीमी शहर में रहती थी, जहाँ अच्छे तालीमी इदारों की भरमार है। आप पढ़ने के लिए एक अच्छे कॉलेज जाती थी। आपके फादर का पाकिस्तान के एक बड़े बाजार में अपना ज़ाती कालीन स्टोर है। आपके पास अपना ज़ाती घर है। आप कोई जॉब भी नहीं करती थी, फिर भी आपकी तालीमी काबिलियत में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं था। आप किसी भी तरह इस स्कॉलरशिप की मुस्तहिक नहीं थी। आपकी दरख्वास्त पर जवाब भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने जवाब दिया, आपकी तालीमी काबिलियत देखकर नहीं, आपकी ज़हनी हालत देखकर। अपने आखिरी मेल में आपने लिखा था, मैं हूँ कि मनहूस मारी, मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो दी। हमारे ये ग्रुप मेंबर ने जो नफ्सियात की तालिबा हैं, आपकी भेजी की दूसरी मेल्स भी पढ़ी और उसने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाहकुन है। किसी भी तरह की नाकामियाँ उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त लिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर हकीकतन काफ़ी परेशान थे। हम अपने स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको उस कैफियत में भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, 6 दूसरे स्टूडेंट्स से राब्ते किए और फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फंड्स इकट्ठे किए, और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती कि हमने मतलूबा हदफ पूरा करने की कोशिश की। उन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, बंगाली, जापानी, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए यहाँ खास तौर पर मैं आपको ये ज़हीन नशीन करवा दूँ कि इन अफराद का और उनकी अक़वाम का एहतराम आप पर लाजिम है। हमने आपसे पूछा, क्या आप 50% अफोर्ड कर सकती हैं? आपने कहा नहीं। मुझे यकीन है कि उस 50% के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदायगी पर मान गई। अगर आप 30% पर भी ना मानती तो आपके लिए मुझे अपनी वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने कॉलेज के ज़माने में अपने पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से खरीदी थी। ये बात याद रखने लायक है कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फंड्स दिए हैं वो बहुत अमीर कभी नहीं हैं।
सब पढ़ने के साथ साथ जॉब करते हैं और एक एक पैनी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू के जोर से यहाँ नहीं आ गई। हर रोज हमने आपके लिए मीटिंग की है, सूरत हाल पर गौर किया है, कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पॉइंट्स को उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट करना समझती हैं आप? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफा हो, और ये फायदा वो इस तरह से ले रहे हैं कि तीसरी दुनिया का एक बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क को कौम का सहारा बने। उन्हें आप उनके दिए के पूरे पैसे वापस करेंगी, 1 पॉइंट कम ना 1 पॉइंट ज्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारे मुनाफे या फायदे के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बराए मेहरबानी समझें और याद तो जरूर रखें, जिन्होंने फंड दिए हैं वो आपको नहीं जानते। कोई एक भी आपका नाम नहीं जानता, शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं जानता, ताकि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। हम 3 के सिवा कोई नहीं जानता कि वो फंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज्जत नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया कि अपने रिहाइश और खाने का जिम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। बहुत अच्छा, सिर्फ यही एक अच्छी और मस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रही, उनसे हमने खास दरख्वास्त की थी कि वो आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ, वो हमारे लिए रजाकार बना था। जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई, वो अपने उस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर कल आप सोई, वो मेट्रोस उन दोनों ने, उसने नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी मांदा बची हुई सेविंग से खरीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीजों को। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि सिवाय किताबों के हर चीज को आपने नूडल्स के पैकेट निकाल कर खाए। मिस अमरहा वो सब बहुत अच्छी मेजबान है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि मेजबानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, शहरों, मुल्कों से दूर यहाँ अकेले रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही हाना थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाती है। सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहीं से उसे एक बर्गर मिलता है और 1 कप कॉफ़ी। वो एक पॉइंट बचाती है क्योंकि अपने तालीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले उसके घर वाले उसे अखराजात के नाम पर 1 पाकिस्तानी रुपया भी नहीं भेज सकते। उसने तन्हा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फीस वालिदैन अदा करते हैं। आप जिन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की, न आपको जॉब की जरूरत पेश आई है। आपको ये सब मामूली लगेगा क्योंकि आपने कभी जिंदगी में सख्त जदोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर, हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें ज्यादा किताबें खरीदनी होती हैं। वो 1 जीन्स और 2 टी-शर्ट्स में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली जिनके फ्लैट पर आप रह रही हैं, उनके साथ रहने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की है। आपके 1 महीने के खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतजाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरहा। उसने सांस भी नहीं लिया और फिर से शुरू हो गया। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया
श्री लंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले स्टूडेंट्स बहुत शिकायती होते हैं, सुस्त, काहिल, बहानेबाज। उन्हें लगता है कि बल्कि उन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, मुसीबतें, दुख उन्हीं की जिंदगी में आ गई हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोएं, लेकिन दुख पर, तकलीफ पर, मुश्किल पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा। इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुदगर्ज हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि इसलिए वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ। नवाल और बरीरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा तो वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मिस अमरहा अपनी सुस्ती, काहिली और बहानेबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देखकर उसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मरना तो उन्हें चाहिए। आप लड़की हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। हमारे मजहब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है? कुरान पाक में जितनी बार एक मर्द का जिक्र आया है उतनी ही बार औरत का आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि खुद को कमज़ोर न समझें, बल्कि अपनी ताकत को पहचाने। मिस अमरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों में आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरो की बहरहाल नहीं। इस बार वो रुका और काफ़ी देर तक रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस एक हफ्ते के दरमियान आप ज़मीन खोदें या गोल गोल घूमें। आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, आपकी जॉब का, आपके फूड का। अगर आप भूखे नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? उसकी गर्दन फौरन नफी में, फिर हाँ में हिली। आप सब समझ गई ना? जी। उसने ऊपर से सर हिलाया, अंदर आंसुओं का रेला दबाया। गुड, अब आप जाएं और ज़मीन खोदें। ओह, मेरा मतलब है जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द से जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी। उसने सर हिलाकर बामुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं, थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी है, जल्द से जल्द। उसकी आवाज़ लंध गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है मिस अमरहा। अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चली जाइएगा जहां आपको कोई ना देख सके, ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाएं, अपनी क्लासेस का मालूम कर लें। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब इसी यूनिवर्सिटी में होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट देख रही हैं, ये सब बिना डरे अपने सब काम कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में घूमे फिरे के आपके काम हो सकते हैं या आपको काम कैसे करने हैं। वो उठ खड़ी हुई। प्लीज़ दिल ही दिल में मुझे बुरा भला मत कहिए। अमरहा का रंग पक हो गया। वो यही कर रही थी, लेकिन उसे कैसे पता चला? और प्लीज़ जब आपकी जॉब का इंतज़ाम हो जाए तो हाना के नूडल्स वापस कर दीजिएगा। कर दूंगी। और एक और बात, दोबारा कभी अपनी डिग्री से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर प्लस को ऐड करने की गलती।
یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شورغل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکہوں کی پھلجھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے، اور وہ دھانے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے تھے وہ کتنے معمولی سے تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ، یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ، یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر، اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔